Hello. Okay. Good morning, students. Today the topic is chemical reaction and equation, and this is the first chapter in science part A, chemistry. So the chapter is chemical reaction and equation. Okay. What is a chemical reaction? How can you define a chemical reaction? Chemical reaction किसको कहते हैं? So a chemical reaction is a process in which substance react to form new substance. That means when two substances react with each other to form a new substance, that we say new substance, we say product. Okay, it is a process in which substance react to form. The substance means reactant. Substance, it means reactant. It react with each other to form a product. New substance means product here. Okay, a new substance form have different properties. That's absolutely correct. Milk is different with and curd is totally different. Okay, that means chemical reaction occur in the milk, a milk converted into curd. The substance will different here, properties will different here. Okay, so how can you say the chemical reaction occur here? How you indicate chemical reactions have occurred here? Okay, simple thing is you have to check the color. If color change means chemical reaction have occurred. Okay, and another thing is afferences. Afferences का other word होता है gas formation and temperature change. This is also indicator for chemical reactions. Okay, so chemical reaction is a process in which substance react with each other. When two or more substance react with each other to form a product, to form a new substance. Okay, here chemical equation represent chemical reaction symbolically. Okay, so always reactant are written on the left side. Always reactant written on the left side and product are written on the right side, and there is a arrow mark between that. There is a arrow mark between there. It shows the direction of reaction. For example, so react with oxygen carbon react with oxygen to form carbon dioxide. To form carbon dioxide. See, carbon is different, oxygen is different. These two react with each other to form a new substance, that is a product carbon dioxide. Okay, so carbon, this is oxygen, reactant reacting with each other and forming a product that is carbon dioxide. Carbon dioxide. ओके, सो रिएक्टेंट कहाँ पे लिखना चाहिए? रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में. सो दिस इज रिएक्टेंट, ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड. इन दोनों के बीच में एक एरो मार्क होता है. इन दोनों के बीच में एरो मार्क होता है कि मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन हुआ है, प्रोडक्ट बना है. Okay, then balancing chemical equation. Why we have to balance a chemical equations? One, there is a law of conservation of mass. Mass of any atom neither be created nor be destroyed in chemical reaction. During chemical reaction, mass neither be created nor be destroyed. कोई भी mass जो है बनता है ना कोई वहां से घटता है. So there is a equal in mass. So balancing ensure the law of conservation of mass is followed. What says law of conservation? Mass neither be created nor be destroyed. So copy this sentence. Mass of any atom
can neither be created nor destroyed during chemical reaction. So number of atom of each element must be equal on both sides. Means right hand side is equal to left hand side. Only coefficient can be changed here. Coefficient means to balance the chemical reaction, we put the number of atom which is required there. So we use trial or error method for oftenly used trial or error method here. So types of chemical reactions. There are 5 types of chemical reactions. Common types include here. There are 5 types of chemical reaction. The first thing is combination reaction. The first thing is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third one, displacement reaction. And fourth one, double displacement reaction. And the fifth one is oxidation and reduction. In short, we say redox reaction. So this is the 5 types of chemical reactions. We'll discuss one after one. So first one, combination reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यहाँ पे टॉपिक में ही मालूम हो जा रहा है कि क्या कंबाइन होना है. कॉम्बिनेशन का मतलब आपस में कंबाइन होना है. सो डेफिनेशन सेज 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है 2 या 3 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होने पर. सो इसी को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड. ओनली सिंगल प्रोडक्ट is formed here during chemical reaction. और combination reaction में सिर्फ single product ही बनता है. For example, magnesium react with oxygen. Magnesium is a metal here and oxygen is a gas. Magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. So these two substance, okay, these two substance okay, magnesium and oxygen. These two substances reacting with each other and forming a single product, that is magnesium oxide. Magnesium oxide. Okay. So arrow mark shows reaction occurred here and product formed here. Okay, magnesium oxide. So you have to balance this. Okay. So magnesium reactant side में कितने हैं? 2 है. और oxygen में oxygen कितने हैं? 2 है. So simply we have to put the coefficient 2 here to balance the magnesium and oxygen. Okay, magnesium combined with oxygen. Magnesium combine किससे हो रहा? Oxygen से हो रहा. ठीक है, तो क्या फॉर्म हो रहा है? Magnesium oxide फॉर्म हो रहा है. So combination reaction क्या है? Combination reaction में क्या बोलते हैं कि 2 से ज्यादा अगर कोई substance आपस में मिल जाते हैं तो single product बनता है. ठीक है, 2 or more substance combining to form a single product. That says combination reaction. Example is magnesium reacting with oxygen to form magnesium oxide. So ये chemical reaction के लिए heat required है. Magnesium ऐसे ही react नहीं करेगा ऑक्सीजन को, उसको sufficient heat चाहिए magnesium को, तभी जाके atmosphere से ऑक्सीजन से react करेगा और magnesium oxide बनेगा. So coming to second type of reaction, that is decomposition reaction. Here decomposition means simply break. कोई चीज अगर break हो रही है तो उसको decomposition बोलते हैं और decompose भी कहते हैं. So second type of chemical reaction is decomposition reactions. Okay. So what is decomposition reaction? A single compound break down into simpler substances when heated, exposed to light or electricity. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? कोई कंपाउंड जब ब्रेक होता है, अब ब्रेक भी किस तरीके से होता है, उसको चाहिए हीट, तब सफिशिएंट हीट मिल जाती है तो वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है. जब ब्रेक होता है तो 2 मोर सब्सटेंस को उन्हें देता है. कोई चीज अगर ब्रेक हुई तो 2 चीज में तकसीम हो जाती है. सो और दूसरी चीज क्या चाहिए उसको?
लाइट चाहिए, लाइट की मदद से भी उन्हें ब्रेक होता है, और तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी ब्रेक होता है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हीट का बोले हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशंस, हम यहाँ पे जो हीट बोले हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो हीट जो होता है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है तो इस वजह से हीट रिक्वायर्ड है, थर्मल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फोटो मतलब ये लाइट जो है, लाइट को हम यहाँ पे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हीट को हम यूज करे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और लाइट को यूज करे हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। सो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक और कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया है मर्क्यूरी का। ओके, सो ये कंपाउंड है मर्क्यूरी ऑक्साइड है। ठीक है, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है, ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है, इट इज अ सिंबल ऑफ हीट। ये किसका सिंबल होता है? हीट का सिंबल होता है। सो विद द हेल्प ऑफ हीट मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है ब्रेक होके टू प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पे, मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। मर्क्यूरी ऑक्साइड हीट की मदद से टूट जाता है और देता है मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड decomposition reaction. Since we are using heat to break this mercury oxide, तो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या ये? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम यहाँ पे और भी एग्जांपल लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जब ब्रेक होता है इलेक्ट्रिसिटी से तो क्या देता है बेटा? हाइड्रोजन देगा ये, प्लस ऑक्सीजन देगा, हाइड्रोजन देगा ये एंड ऑक्सीजन देगा। So we are using here electricity to break this compound water and forming hydrogen and oxygen. Okay, so this decomposition reaction says when a compound, one single compound breaks into simpler product, one or two. Okay, so ये कब टूटता है? हीट की मदद से टूटता है, लाइट की मदद से टूटता है, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब कोई कंपाउंड टूटता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब होता है चेंजिंग द प्लेस। ओके, अब यहाँ पे चेंजिंग द प्लेस कब होता है? टॉप रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। सो स्ट्रॉन्ग मेटल ही वीक मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन में अगर कोई डिस्प्लेस हो रहा है मेटल तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग मेटल वीक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो एग्जांपल गिवन हियर इज जिंक। जिंक is a metal here. Okay, so zinc plus copper sulfate, zinc plus copper sulfate. Okay, so zinc is more reactive than copper, zinc is more reactive than copper। अगर आप रिएक्टिविटी की सीरीज अगर देखेंगे तो जिंक जो है सबसे पहले है, कॉपर से पहले है। ठीक है, तो जिंक स्ट्रॉन्ग है मेटल, कॉपर भी मेटल है लेकिन जिंक से स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीकर देन जिंक है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, वहां से उसको हटा देगा और कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा। तो जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ओके, सो इसी को भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो बना रहा क्या है? अब कॉपर की जगह पे सिर्फ जिंक आ गया तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा, जैसे पहले जिंक था। तो जिंक
की जगह कॉपर लेगा और कॉपर की जगह जिंक लेगा, मतलब जिंक यहाँ पे स्ट्रांग है और कॉपर बहुत वीक है, ठीक है। तो इस वजह से जिंक मेटल क्या करते हैं, कॉपर मेटल को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलोन छोड़ देते हैं। A fourth type of chemical reaction is double displacement reactions. Here two types of chemical exchange ions करते हैं। कोई chemical reactions में, कोई chemical reaction में दो compound जब ion exchange करते हैं two times, तो उसी को कहते हैं double displacement reaction. A displacement reaction is single displacement. अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे आयोन्स को टू टाइम्स यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। और दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑफन यूज्ड, और हमेशा यहाँ पे जो है बोर्ड एग्जाम में ये एग्जांपल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड होता है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। ये हमेशा का क्वेश्चन सही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। अब दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, टू मोर कंपाउंड्स बनाएंगे आयन एक्सचेंज करके। कैसा, आयन एक्सचेंज करके। यहाँ पे AgCl NaNO3, तो अब AgCl को लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 को लिखेंगे हम सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे ये जो बनता है सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का, ये व्हाइट प्रिसिपिटेशन बनता है। अब ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं कोई केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्युबल, कोई सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल अगर सेटल डाउन हो रहा, इनसॉल्युबल सेटल डाउन हो रहा, नीचे जाके जम जा रहा, तो उसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट दिस केमिकल रिएक्शन सेज, two compound exchanging their ions to form a compounds. Here the best example is AgNO3 and NaCl. Ag को हम यहाँ पे सिल्वर बोलते हैं, NO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनता है, AgCl प्लस NaNO3 बनता है। अब ये किस तरीके से बनता है, सो Ag ये पॉजिटिव होता है, Ag क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस, Ag पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट माइनस होता है, सोडियम मेटल है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे होता है, देखो बेटा, Ag किससे मिल रहा है, जाके Cl से मिल रहा है। Ag किससे मिल रहा है, Cl से, क्योंकि अपोजिट साइन ही अट्रैक्ट करते हैं, जो सिमिलर साइंस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। सो पॉजिटिव सिल्वर किससे कंबाइन हो रहा है, वो क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, तो AgCl बनेगा। और यहाँ पे जो सोडियम है वो किससे जाके कंबाइन करेगा, NO3 से कंबाइन करेगा, तो NaNO3 बने। मतलब टू टाइम्स यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, टू टाइम्स यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट साइड में आपको प्रेसिपिटेशन मिलता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये कि इनसॉल्युबल रहना और इनसॉल्युबल होकर नीचे सेटल डाउन होना, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ कमिंग हियर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और रिडक्शन को क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कोई केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन्स वहां पे लॉस हो रहे हैं, ऑक्सीजन्स वहां से डिसअपियर हो जा रहा, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और कहीं जाके अगर ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और इन दो टर्म को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ही हम छोटा सा वर्ड दिए है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। सो डेफिनेशन में देखेंगे, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही साथ होएगा। कोई केमिकल रिएक्शन में दोनों एक ही साथ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस होता है, ऑक्सीजन गेन होता है। सो रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करेगा, कॉपर अलग होगा, फिर वाटर बनेगा। ये हाइड्रोजन में ऐड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन देखिए, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है।
ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलके ही क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और वाटर अलग बन जाता है। सो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन है। सो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप की अगर केमिकल रिएक्शन आपको दिए हैं और आपको बताने पूछता है कि ऑक्सीडेशन कौन सा है और रिडक्शन कौन सा है, सो सिंपली देखना बेटा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। ठीक है। सो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था लेकिन प्रोडक्ट्स बन के क्या बन गया, वो वाटर बन गया, मतलब वहां पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो अब ऐड ऑफ ऑक्सीजन को आप बोलते हैं, ऐड ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न, थोड़ा सा ग्लास कर लेंगे हम स्टार्टिंग से। तो चैप्टर हमारा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं तो नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट साइड होता है और प्रोडक्ट साइड होता है। एरो मार्क के हेड साइड जो होता है प्रोडक्ट होता है ऑलवेज, और एरो मार्क का जो टेल साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है। जब भी नया सब्सटेंस जो बनता है वो टोटली डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से। जब कोई भी आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट अलग होता है रिएक्टेंट से। तो हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं हम रिएक्शन हुआ है। सो हम देखते हैं कि कलर चेंज हुआ है, यानी कोई अगर कलर चेंज हो रहा है तो समझना वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गैस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गैस फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो वहाँ पे गैस एलिमिनेट होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया है। अगर कोई चेंज हीट में चेंज हो रहा है, हीट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो इस यहाँ पे एक चैप्टर में यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का भी जिक्र क्या है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन में जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है। पहले तो कभी हीट नहीं थी, कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल स्लेक्ड क्विक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप वाटर ऐड कर देंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। अब वहां पे तो हम हीट का तो इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आपस में रिएक्ट करने के बाद बहुत ज्यादा हीट हो गया, तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हीट यूज करके हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। सो व्हेन एनी टू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म इज प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस, दैट इज वी कॉल केमिकल रिएक्शन। और एरो मार्क के हेड साइड प्रोडक्ट रहेगा, एरो मार्क के टेल साइड रिएक्टेंट रहेगा। नई चीज जब बनती है तो टोटली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। और कैसे पहचानेंगे आप, कलर चेंज, गैस का फॉर्मेशन, हीट का चेंज। ओके, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्टेंट सिंबॉलिकली। देखो बेटा यहाँ पे हम सिंबॉलिकली यूज करते हैं, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट होता है, इन दोनों के बीच में तो एरो मार्क होता है। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग करते हैं आप, तो क्या आप ध्यान में रखते हैं, तो वहां पे एक लॉ इस्तेमाल होता है, वो लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि कोई भी एटम का मास क्रिएट भी नहीं होता, वहां से कोई डिस्ट्रॉयड भी होता। कोई केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम एग्जैक्ट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। So number of atom of each element must be equal on both sides. That means LHS is equals to RHS. Only coefficient can be changed here. Coefficient हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हमको बैलेंस करना है। अगर सपोज फर्स्ट करिए, अगर प्रोडक्ट साइड में अगर ऑक्सीजन वहाँ पे 3 है, तो हम रिएक्टेंट साइड में भी 3 कोएफिशिएंट लगा सकते हैं, और इसी मेथड को हम ट्रायल एरर मेथड बोलते हैं। So there are 5 types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation reduction reaction, simply redox reaction. Combination reaction में होता क्या बेटा,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रहा है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में A प्लस बी गिव राइज टू AB। दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का ही अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जब कभी भी ए बी अगर टूट जाता है तो क्या बनेगा? वो A प्लस बी बन जाएगा। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड टूट जाता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, देखो सिंगल कंपाउंड है, ब्रेक होने के बाद क्या हो जा रहा है? A प्लस बी। अब ब्रेक होने के लिए डिकम्पोजिशन में लाइट की जरूरत होती है, फोटोलाइटिक बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं हम, और हीट की जरूरत होती है, हम थर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब जो कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई एक मेटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वीक मेटल को जब डिस्प्लेस करता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर टू टाइम्स कंपाउंड में आयन एक्सचेंज करके अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में कहते हैं हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, two more substances combine to form a single product, combination reaction. Magnesium plus oxygen, magnesium oxide. Decomposition reactions. So mercury oxide जो कंपाउंड था, हीट की मदद से ये ब्रेक होकर मर्क्यूरी अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। सो सिंगल कंपाउंड जो ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस बनाता है, ये किसकी मदद से होता है? हीट या तो लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ओके, नाउ double displacement reaction, two compounds, here two compound is AgNO3 and sodium chloride। AgNO3 and sodium chloride यहाँ पे दो कंपाउंड है, ये इन दो कंपाउंड आपस में टू टाइम्स आयन एक्सचेंज करता है। एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयन्स टू फॉर्म ए कंपाउंड्स, जब आयन एक्सचेंज होता है तो कंपाउंड्स भी बनते हैं। ठीक है, सो AgCl बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl है, ये वाइट प्रिसिपिटेशन बनाता है, मतलब ये इनसॉल्युबल रहता है, और ये इनसॉल्युबल है तो इसी वजह से वो सोल्यूशन में, वो रिएक्शन के जो सोल्यूशन में नीचे जाके सेटल्ड हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस ही होता है, मतलब दोनों भी एक साथ होता है, तो इसी को ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में सिंपली गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे दूसरी चीज भी बता देता हूँ मैं आपको, इसके अलावा भी आपको क्या पढ़ना है? कोरोजन पढ़ना है और रैंसिडिटी पढ़ना है। कोरोजन का मतलब होता है मेटल एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, तो तब जाके जो है बेटा कोरोड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं। अब ये आयरन क्या करता है? मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, सो आयरन अगर वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो वो रैंसिडिटी हो जाती है, तो सिंपली हम कोरोजन बोलते हैं, जंग लग जाना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 10th में बताया हुआ है कि रैंसिडिटी का मतलब होता है कोरोजन ऑफ आयरन हियर। ठीक है, अभी हम रैंसिडिटी है, वो तो कोरोजन हो गया, यहाँ पे रैंसिडिटी बोल के। रैंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कोई आपकी फूड स्पॉइल हो रही है, खाना खराब हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। फॉर एग्जांपल, अब रैंसिडिटी के बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रैंसिडिटी को बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपके फूड आइटम्स को एयरटाइट करना है, अच्छा से कवर करना है, उसको अच्छे से कैप करना है टाइटली, क्योंकि एयर पास नहीं होना, ना अंदर जाना ना बाहर आना, एयर टाइट करना है। उसको हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। और तीसरी चीज, हम कोई अगर चिप्स की अगर तुम आप पैकेट देख लीजिए, देख लो, तो चिप्स के अंदर जो होते हैं बहुत सारी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है बेटा, तो इस वजह से नाइट्रोजन गैस को वहां पे फिल करते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द चैप्टर। आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है मैं भी बता देता हूँ मैं आपको जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो देख लेना है। मैंने बताया कि दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको इक्वल रहना है।
और दूसरी चीज यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रैंसिडिटी एंड कोरोशंस। ये टाइप के केमिकल, ये टाइप के डेफिनेशंस आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको ये भी पढ़ना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बैलेंस करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही है, ठीक है।